Okay, good evening, guys. Hello, everyone. Hello, hello, hello. Welcome back to another session of Advanced Biology for NSEJS, and I hope you all are doing very good. So, jaldi se, we can take an audio video check. Am I clearly audible and visible to all of you? Is it fine, guys? Am I clearly audible and visible? Good evening, beta. Am I clearly audible and visible to all of you? Yeah. So, well, today we are going to cover a very important chapter, or I should say, a very important topic, that is the structure of the nucleic acids. So, ये बेटा आपको बायोमोलिक्यूल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट व्हेन इट विल कम टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हेन यू विल हैव टू deal with DNA replication, transcription, translation, then these basic concepts are going to help you a lot. And if you look at the previous year's question paper, you will find कि DNA से बहुत DNA and RNA से बहुत सारे questions जो है आते हैं. So it is our duty to actually understand all the important concepts regarding the structure of the nucleic acids, including DNA, RNA, and everything. So this lecture is going to be very much informative for all of you, and I hope you guys are excited as well. Okay, so it's very good. So let's move to the topic then. So, this topic is going to be covered in two lectures. Today, we are just going to discuss the basics, the general introduction to the topic, and in the next class, I will cover in depth about the structure of DNA. Okay, so बेटा आज हम दो पार्ट में करेंगे इस लेक्चर को. पहले पार्ट में we are just going to have a casual introduction to the topic, and जो next पार्ट आएगा उसमें बेटा हम डीएनए के स्ट्रक्चर को एकदम डिटेल व्यू में पढ़ेंगे. So let's move ahead now. So as I said, we are going to talk about the nucleic acids. So what are nucleic acids, guys? So nucleic acids क्या है बेटा? They are what? They are the macromolecules. What are they? They are the macromolecules. So let me just highlight this point. Yeah, what are they? So they are the macromolecules. When you say macromolecules, what do you mean by the macromolecules? So बेटा nucleic acids जो होते हैं, they are macromolecules, simply macrobiomolecules, जो कि बेटा आपके एक सेल में acid insoluble fraction में आएगा. किसमें आएगा बेटा? तो it will appear in the acid insoluble fraction. It will appear in the acid insoluble fraction of any living tissue. मतलब कि I hope you guys are aware how to get this acid soluble fraction and acid insoluble fraction. आप क्या करते हो? आप अपना sample लेते हो. Either you can take the plant sample or you can take any animal sample. Animal sample में बेटा हम ये spleen लेते हैं या liver लेते हैं. So for example, you can take a mice का spleen or you can take a mice liver. हम उसे बहुत अच्छे से क्रश करते हैं in acid. कौन सा acid यूज करते हैं? तो we use trichloroacetic acid. Which one do we use? We use trichloroacetic acid. ना बेटा उसमें हम उस बहुत ही अच्छे से अपने टिश्यू को, इट कैन इधर बी प्लांट टिश्यू और इट कैन बी एन एनिमल टिश्यू, उसको बहुत अच्छे से क्रश करते हैं. नाउ क्रश करने के बाद वी गेट अ स्लरी. दैट स्लरी इज फिल्टर्ड आउट. ओके, यू कैन यूज अ म्यूस्लिन क्लॉथ, यू कैन use a filter paper. आप उसे अच्छे से फिल्टर कर लेते हो. So you will end up getting two things. First, you will get the acid soluble fraction that will come out as the filtrate, and another part, that is the acid insoluble fraction, that will come out as the residue on the filter paper or the muesli or whatever you are using. So these are the two terms, like acid soluble fraction and acid insoluble fraction. तो जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और जो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे appear in the acid soluble fraction. जैसे बेटा आपके मोनोसेक्राइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेयर एज जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स, योर proteins, your nucleic acid, these things appear in the acid insoluble fraction. I hope it is clear to all of you till here. यहाँ तक सारे बच्चों को एकदम clear है. Okay? I hope it is clear to all of you. किसी को यहाँ तक कुछ पूछने का है तो you are free to ask me anything that you want to ask till here. Okay? चलो. So let's move ahead and let's get into the introduction. तो बेटा ऐसा ही सेट कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स की. तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेटा, हमारे पास दो ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स हैं. फर्स्ट इज योर डीएनए एंड देन यू हैव द आरएनए. फर्स्ट वन इज द डीएनए and the next one is the R. Okay, what is happening? RNA. Oh, just a minute, guys. Okay, it is a problem now.
There should be another option right here. Okay, it's not working. Still the same problem. Just a minute, guys. There is some problem. Okay, let's move ahead then. So what I was telling you that like we have DNA and RNA. So DNA and RNA. Okay. So guys, what is the full form of DNA? So DNA is deoxyribonucleic acid, and then we have RNA, that is the ribose nucleic acid. So बेटा कोई भी nucleic acid जो होता है, it is made up of three things. What a nucleic acid is made up of? It is made up of three things. First, second, third. So what is the first thing, guys? First thing is the nitrogen bases. What I said? Nitrogen bases. So nitrogen bases, as I said, second is a monosaccharide, monosaccharide, and the third thing is a phosphate group. Third thing is what? It is a phosphate group. Oh, oh, what is happening? ठीक है, तो the fourth thing is a phosphate group. I'll just write it again. ओके, so it's a phosphate group. Three things we have. हर एक न्यूक्लिक एसिड, चाहे बेटा वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो आपका नाइट्रोजन बेस से बना होगा, मोनोसेक्राइड से बना होगा और फॉस्फेट ग्रुप से बना होगा. नाउ सो व्हाट इज अ नाइट्रोजन बेस, व्हाट इज अ मोनोसेक्राइड, व्हाट इज और लाइक फॉस्फेट ग्रुप तो आपको पता ही है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड से यू गेट द फॉस्फेट ग्रुप. ओके, सो अभी हम इन चीजों के बारे में समझने वाले हैं. ओके, सो ऐसे ही टोल्ड यू कि पहला क्या है बेटा, हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं, देन वी हैव द मोनोसेक्राइड्स, देन वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप. नाउ जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, तो दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. व्हाट आर दी? तो बेटा जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप बहुत एडवांस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ते हो, देन वी टॉक अबाउट हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री. तो जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है वो अभी तक आपने समझी भी नहीं है ना, आपने उसका इंट्रोडक्शन भी आपको नहीं बताया. जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ कि नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बेटा बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा हुआ. ना बेटा बेंजीन में अगर मैं कुछ कार्बन एटम्स को किसी और एटम अदर देन द कार्बन से रिप्लेस कर दूं, so that compound will be called as a heterocyclic compound. Okay, so अगर आपके पास एक कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, what I said, अगर आपके पास कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में if you are replacing any carbon atom with another atom other than the carbon, of course, it can be sulfur, it can be oxygen, it can be nitrogen, etc., etc. So that compound will be called as an heterocyclic compound. So जो हमारे nitrogen bases होते हैं, they are nothing, they are just the heterocyclic compounds. Okay, then we have the monosaccharide. Monosaccharides क्या होते हैं, तो बेटा they are the monomers of sugars. Monosaccharides क्या होते हैं बेटा, they are nothing, they are just the sugars. This is starch का जो monosaccharide है, that is glucose. Okay, so monosaccharide में बेटा हमारे पास कौन सी sugar होती है, so we have pentose sugar, we have pentose sugar, we have pentose sugars. Okay, now we'll talk about the pentose sugars as well. So एक ही करके शुरू करते हैं. First let's start with the nitrogen bases. तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, या सो आई शो यू, वी हैव द हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस. The second is a monosaccharide, that is the sugar. Okay, here you have the pentose sugar. If you can see, this is the base, this is the sugar, and attached to is a phosphate group. This is the phosphate group. Okay, so very good. Now बेटा अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले शुगर से. शुगर तो बहुत इजी है बेटा, है ना? तो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी 6 कार्बन होते हैं, राइट? ग्लूकोज में यू हैव 6 कार्बन. सो ग्लूकोज इज एन हेक्सो शुगर. वो क्या है? वो एक हेक्सो शुगर है बेटा. डीएनए में पाए जाने वाली जो मोनोसेक्राइड जो शुगर है, उसमें 5 कार्बन होते हैं. कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं. सो आपके पास ऐसे ही सेट की 5 कार्बन होते हैं, तो दिस शुगर कैन बी कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर. इट कैन बी कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर. पेंटोज का मतलब क्या है? इट इज अ 5 कार्बन शुगर. इट इज अ 5 कार्बन शुगर. ओके, इट इज अ 5 कार्बन शुगर. सो नाउ अब बेटा हमारे पास दो चीजें होती है. फर्स्ट वी हैव द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड देन वी हैव द राइबोन्यूक्लिक एसिड.
तो व्हाट इज द डिफरेंस? डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? तो डीएनए और आरएनए में बेटा पहला अंतर होता है शुगर का। बेटा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, वेयर एज इन केस ऑफ आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में वी हैव द राइबोस शुगर। बेटा अंतर क्या है दोनों में? तो एक बार तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा कि बेटा राइबोस शुगर का, आई जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर आउट फॉर यू ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, डू आई हैव अ फ्री पेज? या राइट ओवर हियर। तो बेटा एक बार हम राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो राइबोस में हमारे पास बेटा ऐसे ही सेट कि राइबोस शुगर हम पहले ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो राइबोस शुगर में बहुत ईजी है याद करने के लिए। फर्स्ट वी एक्चुअली नीड टू मेक अ पेंटागन। ठीक है, 5 कार्बन है, तो बेटा 5 कार्बन के लिए यू विल हैव दी pentagon. Okay, so this is the pentagon. Now, guys, I'll make the bond. I'll start making the bonds. So here you have the bonds. Okay, now इधर होगा सबसे पहले, just remember B up. Okay, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए. So B up, that is the, हम ऊपर में on the first. Okay, this is the first carbon. This is the second carbon. This is the third carbon. This is the fourth carbon. Where will be the fifth carbon? तो बेटा यहाँ पे होगा fifth carbon. CH2, CH2, OH. Okay, so here you will have the fifth carbon. CH2OH, this is the fifth carbon. So 1, 2, 3, 4, 5. Here you have all the 5 carbons, right? So here I'm just gonna put H. अब बेटा यहाँ पे उल्टा करके लगा देंगे H, OH. It's just all symmetric. ठीक है, सब सिमेट्री का खेल है ना? बस ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दिस इज द राइबोस शुगर। ना बेटा हमने राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया सर। अब डीऑक्सी राइबोस क्या होता है? तो बेटा डीऑक्सी राइबोस शुगर में आपके पास ये जो सेकेंड कार्बन है इस पे ये OH नहीं होगा, यहाँ पे यू विल जस्ट हैव दी हाइड्रोजन एटम। ओके, सो व्हाट इज सेड कि अगर मुझे डीऑक्सी राइबोस शुगर बनानी है, डीऑक्सी राइबोस शुगर बनानी है, व्हाट विल आई डू? सो आई विल मेक द सेम स्ट्रक्चर अगेन। ओके, हियर आई हैव द ऑक्सीजन एटम, देन अ पेंटोज रिंग। ओके, देन आपके पास बेटा यहाँ पे हम पहले पहला बॉन्ड बनाने शुरू करेंगे हम अपने। सो हियर यू हैव द फर्स्ट थिंग, या सो यहाँ पे हमने फिर से क्या OH, हियर आई हैव द H। यहाँ पे फिर से बेटा पहले कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं OH, हियर यू विल हैव द H। कैन यू मूव दिस? हियर आई विल हैव H, H. Here it will be CH2OH, CH2O, and then H. And यहाँ पे क्या होगा बेटा? So here you will have simply an H instead of H there. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तुम अंतर देख सकते हो। जस्ट लुक एट हियर, लुक एट हियर। सो एट कार्बन 2 आपके पास डीऑक्सीराइबोस में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, देयर यू सिंपली हैव एन हाइड्रोजन एटम। नाउ एक ऑक्सीजन को हटा देने से बेटा डीऑक्सीराइबोस जो होती है इसकी काफी ज्यादा रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर बेटा रिएक्टिविटी कम होगी तो व्हाट विल हैपन? अगर इफ द रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग द प्रोडक्ट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। तो बेटा एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ गई, राइट? बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब बेटा स्टेबल है, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो राइबोस शुगर से ज्यादा स्टेबल है when involved in the structure। ठीक है, जब आप डीऑक्सीराइबोस जब डीएनए में प्रेजेंट होती है बेटा, तब इस सेकंड पोजीशन पे जो हमारा H है ना, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, दैट ऑक्सीजन इज ओके, दिस ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव। तो बेटा क्योंकि हमने इसे रिप्लेस कर दिया विद द हाइड्रोजन, तो दिस चेंज, like just a single change in the sugar brings a very big difference in the stability of the DNA. Okay, so DNA is much more stable than RNA by structure. Clear है? चलो बेटा, so let's move back. So हमने क्या कहा कि DNA में we have the deoxyribose sugar, whereas in case of RNA we have the ribose sugar. Then comes the nucleic acids. तो न्यूक्लिक एसिड्स में बेटा हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन बेसेस। ओके, हमने पहली चीज के बारे में तो डिस्कस कर लिया, वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर मोनोसैकेराइड्स, राइट? नाउ इट्स टाइम फॉर द नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसिस में क्या होता है बेटा? सो वी हैव लाइक टू नाइट्रोजन we have two types of nitrogen bases। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस को we can simply write as N bases, नाइट्रोजन बेसिस। ओके, तो बेटा दो कैटेगरी के होते हैं ये। फर्स्ट यू हैव द प्यूरिन एंड देन यू हैव द पायरिमिडीन। तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन।
ठीक है, अभी बेटा इनके नाम देख लेते हैं। सो प्यूरिन्स का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो हाउ कैन यू मेक द स्ट्रक्चर, ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर में क्या पता होना चाहिए। नॉट दिस थिंग, आई डोंट वांट टू मेक, आई नीड एन एक्सेल। ओके, ये हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, इज इट फाइन नाउ, इज इट फाइन टू ईच वन ऑफ यू, या। सो लेट्स डू दिस। तो प्यूरिन में बेटा क्या होगा, सबसे पहले आई एम जस्ट गोना मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन, कि प्यूरिन रिंग दिखती कैसी है। जस्ट लुक एट हियर एंड दिस इज द पायरिमिडीन। बेटा पायरिमिडीन, ओके दिस इज द प्यूरिन। नाउ यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम होगा, हियर यू आर गोना हैव अ नाइट्रोजन एटम, हियर यू आर गोइंग टू हैव नाइट्रोजन एटम एंड दिस वन। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास बेटा 1 3 7 और 9 पोजीशन पे आपके पास नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। रेस्ट जो एटम्स है ज्यादा दे आर दी कार्बन एटम्स। ओके, अब इसकी वैलेंसी हम सबकी फुलफिल कर देते हैं। तो हियर यू विल हैव दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, ठीक है। हियर दिस इज द प्यूरिन रिंग, इसी को बेटा प्यूरिन रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रही है, ये जो पेंटागन है बेटा, दिस इज द इमिडाजोल रिंग, इसे हम इमिडा, ओके दिस इज द पायरिमिडीन रिंग, ये आपकी पायरिमिडीन रिंग है, पायरिमिडीन रिंग, ठीक है। और पायरिमिडीन में बेटा ये जो रिंग है जो साइड में लगी है, दिस इज द इमिडाजोल रिंग, ये आपकी इमिडाजोल है। ओके, दिस इज द इमिडाजोल रिंग। तो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर तो बेटा हमने ऑलरेडी देख रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, लाइक दिस दिस एंड दिस। सो दिस इज द पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन पे बेटा 1 और 3 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया अबाउट द स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। ओके, सो वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। नाउ तो प्यूरिन्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो प्यूरिन्स में फर्स्ट वी हैव एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, दो नाइट्रोजन बेसिस जो हमारे प्यूरिन प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। तो फर्स्ट वन इज द एडेनिन, पहले वाले का नाम होता है एडेनिन एंड दूसरे वाले का नाम होता है ग्वानिन। क्या नाम होता है, ग्वानिन। ओके, सिमिलरली पायरिमिडीन में हमारे पास बेटा 3 प्रेजेंट होते हैं। पायरिमिडीन में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो पायरिमिडीन में फर्स्ट इज द साइटोसिन, साइटोसिन। नाउ देन यू हैव द थाइमीन, थाइमीन, एंड देन यू हैव द यूरासिल, यूरासिल, ठीक है। तो बेटा ये आपकी नाइट्रोजन बेसिस हैं जो आपके डीएनए को बनाते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने कहा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनमें वी हैव द नाइट्रोजन बेसिस, वी हैव द शुगर, वी हैव द फॉस्फेट। शुगर में बेटा वी हैव अ पेंटोज शुगर, दो हो सकती हैं। डीएनए के केस में यू हैव द डीऑक्सीराइबोज शुगर, इन द केस ऑफ आरएनए यू हैव द राइबोज शुगर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, बेटा डीऑक्सीराइबोज पे सेकेंड कार्बन पे आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइबोज में सेकेंड कार्बन पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन वी टॉक कि हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो बेटा इन टोटल एक वी हैव 5 नाइट्रोजन बेसिस। ओके, वी हैव 5 नाइट्रोजन बेसिस। तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज द प्यूरिन, सेकंड इज द पायरिमिडीन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर हमने देखा, प्यूरिन में क्या होता है, तो उसमें बेटा आपके पास इट इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, दो साइकिल्स हैं। आपके पास 1379 पोजीशन पे आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, एंड आई हैव डन द नंबरिंग एज वेल। तो बेटा प्यूरिन में कुछ नहीं होता, प्यूरिन में यू हैव अ पायरिमिडीन रिंग अटैच्ड टू इट, यू हैव एन इमिडाजोल रिंग। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पायरिमिडीन रिंग, दिस इज द इमिडाजोल रिंग, दोनों को मिलाया बन गया प्यूरिन। और पायरिमिडीन में क्या होता है, तो इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, सॉरी 6, इट इज अ like this hexagon shaped compound. Okay, इसमें आपके पास 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम होता है, बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम पायरिमिडीन में हमारे पास, ओके सो प्यूरिन में कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में यू हैव साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। आई होप अभी तुम्हें सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो ऐसे ही सेट कि 5 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, दीज टू आर कॉल्ड एज प्यूरिन। ओके, यू कैन आल्सो लुक एट द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखो जो रिंग मैंने बनाई थी बेटा, वो रिंग इनके स्ट्रक्चर में दिख रही है हमें। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एडेनिन, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्वानिन, दीज आर द 3 पायरिमिडीन्स।
ओके, एंड ये 5 मिला के आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोसाइड। सो आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना वरना दिक्कत होगी, ठीक है। सो गाइस, हम जब एक नाइट्रोजन बेस को बेटा अटैच करते हैं शुगर के साथ, नाइट्रोजन बेस को हम शुगर के संग अटैच करते हैं, तो बेटा हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। वी विल कॉल इट एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे बेटा, एडेनिन था आपके पास, एडेनिन के साथ आपने अपनी शुगर को अटैच कर दिया, दिस इज योर शुगर, राइट, एंड दिस इज द एडेनिन अटैच टू इट, तो इसका नाम हो गया एडिनोसाइन। एडिनोसाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ओके, सेम वे आपके पास यहाँ पे आपके पास यूरासिल था, यूरासिल में आपने शुगर को अटैच कर दिया। ओके, हियर यू हैव द यूरासिल, ये आपकी शुगर होगी, एंड द नेम टर्न टू बी यूरिडीन। तो बेटा इसके पीछे इसका एक नेमिंग का स्ट्रक्चर है, आई विल टेल यू अबाउट द नेमिंग वाला पार्ट, ठीक है। देखो बेटा याद करेंगे, जैसे हमारे पास जब भी हम प्यूरिन में शुगर को ऐड करते हैं, तो हम नाम में, प्यूरिन के नाम में ओसाइन लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एडेनिन है बेटा, जब आप इसमें ऐड करोगे अपनी शुगर, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसाइन। सिमिलरली जब आप ग्वानिन में शुगर को ऐड करोगे, राइट, ग्वानिन इज अगेन अ प्यूरिन, तो ग्वानिन में जब आप शुगर को ऐड करोगे, तो इट विल बिकम ग्वानोसाइन, इट विल बिकम ग्वानोसाइन, ठीक है। बट बेटा जब हम किसी भी पैरिमिडीन में शुगर करते हैं, तो उसके नाम में अंतर आता है, ठीक है। वी डोंट यूज द वर्ड ओसाइन, वी यूज द वर्ड इडीन, ठीक है। तो जैसे साइटोसिन था, वी हैव द साइटोसिन, ओके, इसमें जब हम शुगर ऐड करेंगे, so it will become cytidine. What will it become? It will become cytidine. ठीक है, दिस इज द नेमिंग ओनली। वैसे अगर आपके पास थाइमीन है, थाइमीन में बेटा अगर आप शुगर ऐड करोगे, सो द नेम विल बिकम थाइमिडीन। ओके, द नेम विल बिकम थाइमिडीन। एंड सिमिलरली इफ यू हैव यूरासिल, यूरासिल में व्हेन यू विल ऐड द शुगर, इट विल बिकम यूरिडीन, इट विल बिकम यूरिडीन। तो जब आप प्यूरिन में आप शुगर ऐड करते हो, तो नाम में बेटा ओसाइन आ जाता है। जब आप किसी भी पैरिमिडीन में शुगर ऐड करते हो, तो लास्ट में बेटा इडीन आ जाता है। ओके, दिस इज द नेमिंग ओनली। सो इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये हमारे सारे के सारे पांचों के पांचों न्यूक्लियोसाइड्स है। दीज आर द 5 न्यूक्लियोसाइड्स दैट वी हैव। ओके, दीज आर द 5 न्यूक्लियोसाइड्स दैट वी हैव। ओके, या, वेरी गुड। Oh, now time for the another term, that is a nucleotide. What is a nucleotide that we are going to learn? So before that, एक और चीज समझ लेते हैं बेटा, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है ना, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो बेटा डीएनए और आरएनए में अंतर के लिए where should I write? Okay, I'll write here only. So first बेटा डीएनए and you have आरएनए। So बेटा डीएनए और आरएनए में पहला अंतर क्या था, शुगर का था। ओके, डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर, here you have the deoxyribose sugar, whereas in case of RNA you have ribose sugar. What you have? Ribose sugar. Then DNA में बेटा हमारे पास कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा आपके पास प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। These 4 नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए। आरएनए में बेटा प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो बेटा आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल, डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमिन। तो दोनों में 4 नाइट्रोजन बेसिस ही होते हैं। अभी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर यूरासिल और थाइमिन में क्या डिफरेंस है, और या फिर में क्या कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर पे। तो हियर यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल एंड थाइमिन। एक बार देखा है सबको बेटा, यहाँ पे देखेंगे हम 5th कार्बन, दिस इज द 5th कार्बन। ओके, दिस इज द 5th कार्बन। सो इफ यू विल सी दैट यूरासिल में आपके पास 5th कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, बट थाइमिन में आपके पास बेटा यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, यू हैव अ CH3 ग्रुप अटैच। ओके, सो थाइमिन इज नथिंग। थाइमिन क्या होता है, थाइमिन कुछ नहीं होता बेटा, इट इज जस्ट 5 मिथाइल यूरासिल। इट इज व्हाट, इट इज 5 मिथाइल यूरासिल। तो बेटा जब यूरासिल में आप एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दोगे कार्बन नंबर 5, इट बिकम्स थाइमिन। तो बेटा यही अंतर है दोनों आपकी डीएनए और आरएनए। नाउ बच्चा जो स्ट्रक्चर है कि जो आरएनए होता है इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, आपका डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें यू हैव 2 स्ट्रैंड्स। दिस एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे हम क्या चीज के बारे में। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट सम, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ने वाले हैं हम अब, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बेटा अभी बहुत ध्यान से देखना,
अभी हमने क्या बनाया था, तो अभी हमने बनाया था एक न्यूक्लियोसाइड। अभी बेटा जब मैं इस न्यूक्लियोसाइड में, जब इसमें न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच कर दो, ओके आपके पास यहाँ पे OH था, यहाँ से बेटा आपने OH पे आपने अपने फॉस्फेट ग्रुप को कंडेंस कर दिया, ओके विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे बेटा आपके पास फॉस्फेट आएगा, फॉस्फोरिक एसिड आएगा H3PO4, राइट, इट विल रिएक्ट राइट ओवर हियर विद दिस OH, एंड बेटा यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देयर विल बी एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सो अभी बेटा क्या हुआ, आपने नाइट्रोजन बेस में पहले शुगर था तो इट वाज न्यूक्लियोसाइड। अभी बेटा जब आपने इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, मतलब व्हेन यू एडेड अ फॉस्फेट ग्रुप इन अ न्यूक्लियोसाइड इट बिकेम अ न्यूक्लियोटाइड, इट बिकेम अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इट बिकेम अ न्यूक्लियोटाइड। सो शुगर प्लस बेस is equal to nucleoside, sugar plus base plus phosphate group is equal to nucleotide. So you should be aware of the differences between a nucleoside and a nucleotide. Nucleoside beta nitrogen base plus sugar, nucleotide is nitrogen base plus sugar plus phosphate group, or you can simply say nucleoside plus sugar plus phosphate group is equal to nucleotide. ओके तो बेटा अब इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, तो नेमिंग बेटा बहुत सिंपल है। नेमिंग कैसे होगा ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे पास सपोज करो एडिनोसाइन था, उसमें मैंने एडिनोसाइन था, मैंने उसमें बेटा एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। मेरे पास क्या था, मेरे पास बेटा एडिनोसाइन था, दैट इज एडेनिन प्लस शुगर, ठीक है, एडिनोसाइन था, ओके, एंड आई एडेड उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनोफॉस्फेट, राइट, एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनोफॉस्फेट। तो बेटा ये आपका बन गया AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो बेटा अगर हम मोनोमर्स की बात करें, किसकी बात करें, मोनोमर्स की बात करें, तो डीएनए में बेटा 4 तरीके के मोनोमर्स होते हैं और आरएनए में भी बेटा 4 तरीके के मोनोमर्स होते हैं। डीएनए क्या होता है, तो बेटा इसमें होते हैं DAMP, डीऑक्सीराइबो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डी GMP, डीऑक्सीराइबोस, ओके व्हेन आई पुट डी तो दिस मींस डी ऑक्सी, ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस यू कैन सिंपली, या फिर यू कैन सिंपली राइट डीऑक्सी, तो डीऑक्सीराइबोस या डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, you have DCMP and you have DTMP. Whereas in case of RNA, what you have, so you have adenosine monophosphate, you have guanosine monophosphate, you have cytidine monophosphate, you have uridine monophosphate. So these are the 4 monomeric units of RNA. ये इन चारों से मिलकर RNA बनता है और बेटा इन चारों से मिलकर हमारा DNA बनता है। So I'll talk about this thing again. बेटा इसमें देखो क्या है, आपके पास नाइट्रोजन बेस है, शुगर है एंड आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। ओके सो इसमें बेटा आप इसको एक और तरीके से कह सकते हो, यू हैड एडिनोसाइन, उसमें आपने एक एसिडिक ग्रुप को ऐड कर दिया, ओके, यू एडेड अ फॉस्फेट ग्रुप, तो इट विल बी कॉल्ड एज एडिनाइलिक एसिड। You can call it as adenosine monophosphate or you can also call it as adenyllic acid. वैसे thymidyllic acid, you have guanylic acid, you have uridylic acid, you have cytidyllic acid. Okay, these are the 5 nucleotides. Adenosine monophosphate को, okay, I'll just show you here. Adenosine monophosphate को आप बेटा adenylic acid भी कह सकते हो. What you can call it as adenylic acid. Similarly, guanosine monophosphate को guanylic acid. Similarly, cytidine मोनोफॉस्फेट को साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट को थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को यूरिडाइलिक एसिड. दिस इज हाउ यू कैन प्रोनाउंस आउट द नेम्स व्हेन a phosphate group is attached to the corresponding nucleoside and बेटा इसी तरीके से आपका न्यूक्लियोटाइड प्रिपेयर होता है। तो आई होप यहाँ तक बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके अभी बेटा एक और चीज बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास कभी भी तुमने देखा होगा तो हमेशा हमारे पास चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, तो आरएनए और डीएनए की हमेशा एक पोलैरिटी होती है। व्हाट इट मींस, एक पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी कहने का क्या मतलब है बेटा, पोलैरिटी का मतलब है कि बेटा फॉर एग्जांपल हमेशा आप देखोगे जब भी हम डीएनए लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए, तो डीएनए में बेटा हमेशा हम लिखेंगे 3' to 5' एंड जो नेक्स्ट स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी होती है 5' to 3', राइट, दीज आर द 2 strands एंड दिस इज द डेसिग्नेटेड पोलैरिटी। तो बेटा इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, 3' always and always represent a free OH group। क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्री OH ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, जबकि 5' हमेशा एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। 5' क्या करता है, एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप, और आपका 3' क्या करता है, एक फ्री OH ग्रुप। बेटा यहाँ पे देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मोनोमर नंबर 1 था, दिस इज द मोनोमर नंबर 2। ओके अभी बेटा इन दोनों के बीच में क्या होगा बहुत ध्यान से देखना,
कि हाउ दे आर गोइंग टू पॉलीमराइज, हाउ दे आर गोइंग टू मेक गेट इनटू अ सिंगल कंपाउंड। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये आपका क्या लगा है, सो दिस इज दी प्यूरिन, ये आपका प्यूरिन है, ये आपका पायरिमिडीन है। हियर यू हैव द शुगर, इफ यू विल सी कार्बन नंबर 2, तो ये आपकी राइबोस शुगर है, ये आपकी राइबोस शुगर है। बेटा यहाँ पे देखो थर्ड OH आपका ये रहा, एंड फिफ्थ कार्बन पे आपके पास फॉस्फेट लगा है, तो फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा, यू हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। अभी बेटा ये जो फॉस्फेट ग्रुप है अटैच टू द फिफ्थ कार्बन, it can attack it can attack on the third carbon of the adjacent or the next monomer। ठीक है, तो आपके बेटा ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, द बेटर टर्म इज द न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, आई शुड से द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, तो ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है बेटा ये एक बॉन्ड बना सकता है विद द फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट और द प्रीवियस वन, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। बेटा इसके संग एक बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, राइट। सो दिस बॉन्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो अब बेटा यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक तरफ अगर देखोगे तो आपके पास एक फ्री OH ग्रुप है एट 3' कार्बन, एंड यहाँ पे आपके पास बेटा एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप है एट 5' कार्बन। तो यही आपकी बेटा पोलैरिटी होती है। और ये जो बॉन्ड बना बेटा, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एस्टर बॉन्ड, बिकॉज आपका फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इट कैन बी कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपके पास बेटा दो बॉन्ड बने, ये बॉन्ड वाला जो पार्ट है, आई विल कवर दिस पार्ट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ एवरीथिंग इज ब्रॉट टुगेदर, जब हम डीएनए का एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आई ऑल्सो ट्राई टू मेक इट फॉर यू। सो फॉर आई थिंक अभी तक बेटा आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। एनी डाउट टिल हियर? इफ यू हैव, यू गाइस कैन आस्क मी। एनी डाउट? Any doubt till here? If you have, you guys can ask me. नहीं है तो this is the first question. So given below is a diagram of a small molecular weight organic compound. Identify the category shown below and the component X. आपको X को identify करना है, and you also have to tell me the name of the chemical compound shown right over here to you. Okay, so is it A, cholesterol है component and X is guanine? Is it B, component amino acid X is NH2? Option C, is it a nucleotide X is adenine? Option D, it is a nucleoside and it is uracil. X can be a uracil. So what should be the right answer to this one? Is it A? Is it B? Is it C? Is it D? Okay, what should be the right answer, guys? So what I can see is, yeah. So what should be the right answer? Any guesses? So now let's discuss here. Okay, it should be D. The students are saying it should be D. So D is the right answer actually. देखो बेटा ये एक शुगर है और X अगर आपका एक नाइट्रोजन बेस हो सकता है, X कैन बी अ नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोसाइड, नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। ये तो बेटा है ही नहीं, ठीक है। तो इट शुड बी डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs of nitrogen bases is wrongly matched with the category mentioned against it? तो जैसे कि you have to tell me if these two belong to this category. Thymine uracil pyrimidine, B uracil cytosine pyrimidine, guanine and adenine purines, adenine thymine purines. So you have to tell the wrongly matched one. कौन सा wrong है इसमें? Is it A, is it B, is it C or is it D? Which one should be the right answer? Is it A, is it B, is it C or is it D? What should be the right answer to this? So guys, the answer is option D. Adenine and thymine. बेटा thymine एक pyrimidine होता है, adenine is a purine. Okay, so D is the wrongly match. Okay, just focus on this word wrongly. आपको गलत वाला बताना था. These three are correct, but this one is wrong. ठीक है, ये आपका गलत है. So that's my answer is D. Now, which of the following biomolecules does have a phosphodiester bond? अब आपको बताना है बेटा इनमें से किन के बीच में आपको phosphodiester bond देखने को मिलेगा. Fatty acid in a diglyceride, monosaccharide in a polysaccharide, amino acids in a peptide, polypeptide and nucleoside in a nucleic acid. What should be the answer to this question? Great.
So what should be answer to this question? Very easy, I believe. This one is really very easy. Okay, so students are saying that it should be what? Okay, it should be D. D. B और D में confusion है guys. The answer is D. Fatty acid में बेटा जब डाइग्लिसराइड बनता है, तो डाइग्लिसराइड में you have the ester bond. बेटा आपके पास एक नॉर्मल ester bond होता है COOR. Right, this is an ester. तो आपका कुछ ऐसा करके बनेगा. मोनोसेक्राइड में you have a glycosidic bond. Glycosidic bond होता है. ठीक है, here you will have a peptide bond. Peptide bond. बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा. सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, which among the following is a purine nucleotide? The question is it should be a purine nucleotide. So adenosine, cytidine, adenylic acid or cytidylic acid. Which one should be the right answer? Okay, so what should be the answer to this question? It should be C. Okay, students are saying it should be C and C is the right answer. Adenosine, beta or cytidine, these are nucleoside. They are nucleoside. But the question is asking about a nucleotide. तो बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है. नाउ साइटिडीन जो होता है, साइटिडाइलिक एसिड, दैट इज साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. सो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एक बेटा पायरीमिडीन है. साइटोसिन है, साइटोसिन इज अ पायरीमिडीन. तो एडेनिन इज अ प्यूरिन. So she should be the right answer. And that's it for today's class. So thank you so much guys. Now any confusion till here, you guys can ask me. You can also mention your doubts in the comment section. We'll meet in the next class with the next part of this topic, that is the structure of DNA. तो उसमें हम इस polarity वाले point को दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि कैसे डीएनए बनता है. ओके, दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ओके, व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज फॉस्फोडाइएस्टर, मतलब देयर शुड बी टू एस्टर बॉन्ड्स, राइट. तो वो दो एस्टर बॉन्ड्स कौन से हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या हो रहा है, विल गेट इनटू डेप्थ ऑफ एवरी सिंगल थिंग. सो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट.